Namaskar, greetings, and a very warm welcome to all. All right, can we have some videos on, please? Namaste, pranam. All right, okay there. Namaskar, namaskar. आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम. Namaskar, and a very humble welcome to all of you. Namaste. Just a second. Okay, there we are. So I once again humbly welcome you all. I hope आप सबका दिन अच्छा गया. Yes, सुना बहुत बारिश हुई आज. Quite a rainy day. It was quite rainy. Even here also today it was quite rainy. So your Ayurvedic dosha changes according to the weather, the climate, and it affects your mind as well. Yes or no? है ना, कुछ खाने का अलग मन करता है, कुछ पहनने का अलग मन करता है, मन कहीं और चाहता है. अलग अलग टाइप्स के इमोशंस आते हैं. या इन देहरादून तो लॉर्ड ऑफ रेन. यस, देहरादून की बारिश तो मैं भूल नहीं सकता. यहाँ शिमला में भी बारिश होती है, बट इट्स द ड्रिजल्स आर स्मॉलर. बट देहरादून में आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, स्पेशली एफआरआई एरिया इज अ फॉरेस्ट एरिया. ऐसी बारिश होती थी कि छट 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 ऐसी जोर से आवाज. इट वाज वेरी वेरी heaviest rain I've seen is in Dehradun and in Kerala. I was teaching in Kerala, I remember. Kerala में उस समय बाढ़ भी आया था. So I was staying in Varkala in Kerala. I've never seen such rains. Second would be Dehradun. देहरादून की बारिश भी सारी रात इतनी जोर से झमझम झमझम बारिश. दिल्ली में कम बारिश होती है, but I've heard that this year it's like, Delhi is also rainy. बट हम तो तरस जाते हैं बारिश देखने के लिए दिल्ली में, स्पेशली गुड़गांव में. पर जब होती है इट्स ऑल फ्लडेड. ओह, पूजा जी स्टेज नेक्स्ट टू एफआरआई. ओह, आई एम नॉस्टैल्जिक. आई यूज्ड टू स्टे इन द कैंपस, एफआरआई कैंपस. ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स. बट या थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन देहरादून. चलिए चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन दैट वी हैड स्टार्टेड. कल हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीजों पे डिस्कशन किया था और हमें कंक्लूजन पे आए थे कि हमारे जो ग्रह होते हैं और प्लैनेट्स affects our lives through the bodily chakras, yes, and Ayurvedic doshas. ठीक है. हमारी जो प्रकृति होती है, we call it the Vata Pitta Kapha, and the bodily chakras are directly governed by the planetary energies. What I say is that if we know basics, not very advanced, these days I'll be very frank, I get to see a lot of advertisements that you become a genius astrologer, you become an astrologer within 6 months. ऐसे लोग बोलते हैं और मासेस में ये होता है. मेरे अनुसार जितना मैंने पढ़ा है, मेरे टीचर से पढ़ा है, एस्ट्रोलॉजी जैसा सब्जेक्ट सबके लिए नहीं है. योग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आयुर्वेद अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेसिक अपना सकते हैं. बट बिकमिंग वन and taking it professionally is something that requires many, it's not as easy as it is projected. It should really come from within. Then only you'll be doing justice to that particular science. Do you think I'm like making sense? Same. Yoga को आजकल प्रोफेशनल योगा कोर्सेज होते हैं. I have many friends who have done yoga courses as a professional thing, but it did not touch them. So ये सब अकल्ट साइंसेस का बहुत वो होता है कि सबको उस तरह से छूता नहीं है. पर एटलीस्ट व्हाट आई से इज दैट बेसिक नॉलेज ऑफ योग, बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, बेसिक्स ऑफ योर चार्ट्स, बेसिक एंड बेसिक ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्वर विज्ञान की नाड़ियां क्या होती है, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, बेसिक बेसिक लाइफ क्या चीजें अगर आपको पता हो, whatever you do, you can do it more efficiently. That is the idea. Okay. If you are into these already by a divine grace, that you are in any of the spiritual fields, this knowledge is supplementary for you to help further. Many yoga people are there, yogacharyas are there. We have made our targeting so that people who are already practicing yoga but still not getting the benefit, they should increase the efficiency of the yoga practice. Yes or no? Customize it.
I need to work in this area, you need to work in this area, as per your Ayurvedic dosha. So when I practiced yoga abhyas, today, for example, I have mastered one asana and I sit in that asana for very long. How do I select that? As per my dosha, as per my chakras requirement. Simple. If I'm having tremendous amount of emotional attachments, for example, I had a emotional up and down, which area I need to work, I should know, isn't it? If I'm having uncontrolled anger, I get very irritated, where I'm getting very irritable. हर बात में चिड़चिड़ाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है. Which area do I need to work on? Yes. Similarly, if I have anxiety issues or I'm very lazy, I'm all the time, tired and lazy. Which nadi or which area of the body I should work on, I should at least have an idea. This can be done with the help of course, customized when you understand the yogic science little bit in depth, understand the concepts of Ayurveda, which I'm going to talk in a while, and of course, at least if not becoming an astrologer, at least know what your life's patterns look like. Yes or no? You get to know, okay, this is how my this is what it is. तो यही चीज आज और कल में हम करेंगे. ठीक है जी? बराबर? काफी लोगों को पर्सनल क्वेश्चंस लेके वेबिनार में आते हैं, काफी लोग. यस, आपको सबको कुछ ना कुछ इशू होता है ना? ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, और आपको लगता है 3 दिन के वेबिनार में आपको रेमेडी मिल जाएगा, आप फटाक से कर लेंगे. अगेन, आई एम वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट, इट्स इररेलेवेंट टू डू दैट. डोंट यू थिंक सो? इतना छोटा तो प्रॉब्लम है नहीं कि आप एक छोटे से वेबिनार में आए, 3 दिन में सोल्यूशन मिल जाए. तो इतना वो मत करिए. मैं खुद, आई एम टेलिंग यू विद माई एक्सपीरियंस, व्हेन आई ट्रैवल, अभी जैसे मैं ट्रैवल करके आया, 3 दिन से ठीक से योगा नहीं कर पाया. आई हैड सम गेस्ट्स एट होम एंड आई कुड नॉट डू माई योगाभ्यास वेरी प्रॉपरली. जरा सा प्राणायाम किया, जप किया, आई कुड सी दैट माई मेंटल स्टेट वॉज नॉट एज गुड एज इट शुड बी. माई एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो नॉट एज एनर्जाइज्ड. सो आई नो दैट मुझे रोज 2.5 घंटा प्रैक्टिस में देना है. It includes my morning classes also, which I will talk about. We are doing Navagraha Yoga. I'm desperately waiting to start the practice because, I want to get into it. शाम को भी मैं प्रैक्टिस करता हूं, तब जाके मैं बोल सकता हूं, हाँ भैया, आई एम फाइन. तो ये मत सोचिए कि चड़क से एक मंत्र पढ़ लेंगे, फड़क से पूजा कर लेंगे और आपको ठीक हो जाएगा. मेरे अनुसार नहीं होता ऐसा. मेरे अनुसार नहीं होता. आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह टेढ़ा मेढ़ा इफेक्ट डालेगा, करता रहेगा वो. कॉन्स्टेंटली वो एनर्जीज आपको चक्रास में इफेक्ट कर रही है. टू इट्स अ रोइंग ऑफ द बोट अगेंस्ट द फ्लो. सो यू हैव टू पुट good amount of efforts in all the directions to bring your mind, emotions and body into a state of balance. And I'm very 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 honest about it. But if you're persistent, consistently doing it, बिना रुके, जैसे मैं भी अभी रुका नहीं हूं, कम कर दिया है बट रुका नहीं. हमारे किरण सर, डॉक्टर किरण सेठ बोलते थे, उनके गुरु ने उनको कहा था, एक दिन आपका रियाज छूटा, आप 40 दिन पीछे, ऐसा बोलते थे. तो एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे टू मेंटेन द कंटिन्यूटी. आई एम वेरी श्योर आई अगेन इंटेंसिफाई द प्रैक्टिस एंड आई एम टेलिंग यू विद अश्योरेंस everything will be taken care of, provided we are persistent with it. Clear? Chaliye. So let's talk about today's session. It will be a little longer. I will definitely like to talk to a lot of people. A lot of people have a lot of, questions, lot of doubts, lot of clarity have to be done. Many personal questions will come to me. I know that. But let me finish the webinar and then talk to you. I think that will make more sense, because 90% of what I've seen in the pattern is 90% of your questions will get automatically solved and you'll get your own aha moments. For that, you need to pay attention, get beyond me and my problems, right? Let's understand the science and the practicality of it. That will make it more रसीला. ज्ञान में रस होना चाहिए. मेरा प्रॉब्लम, मुझे सोल्यूशन चाहिए. क्या छोटी सी बात में फंसे हैं. ज्ञान जब आप प्राप्त करेंगे, आप स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी समझ पाएंगे, अपने रिलेशंस को समझ पाएंगे. बट स्वयं से स्टार्ट करना है. बराबर? मेकिंग सेंस?
So I'll give you a lot of interesting things. And here, I'm not giving you anything from the, bookish knowledge. It is, of course, in the books. I'm not denying the fact. But आपको जब मैं ये बताऊंगा वात पित्त कफा और मर्क्यूरी सैटर्न के बारे में, you'll be able to visualize such people around you. तो मैं भी अपनी नानी, चाची, मौसा जी, फूफा जी के एग्जांपल्स दूंगा. I will visualize them and give you the knowledge so that you can also do the same thing. You can see people as planets, as Ayurvedic doshas. सो जनरली एस्ट्रोलॉजी हम एंटर करते हैं नक्षत्र, पहले पंचांग समझते हैं, नक्षत्र समझते हैं, फिर राशियां समझते हैं, फिर जाते हैं. यहां हमारा जर्नी उल्टा है. पहले हम आयुर्वेदिक दोष समझेंगे. हम प्लैनेट से पहले विल अंडरस्टैंड द एलिमेंटल एल्गोरिदम्स एंड देन एंटर इनटू द प्लैनेट्स. am I clear? Yesterday I had drawn a chart. I'll quickly draw that once again and tell you that there are five elements and three doshas. 5 element, 3 doshas, and 9 grahas. Let us quickly draw the table. जिन्होंने कल मिस कर लिया था, from the increasing order of density, इन सबको डिस्कस करना है आज हमको, ठीक है? और क्या क्या डिजीजेस इसमें से होती है, क्या क्या मेंटल फिजिकल लेवल पे क्या क्या होता है. तो वात पित्त कफ आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. Vata is caused by Mercury, Saturn, and Rahu. Pitta is by Sun, Mars, and Ketu. Kafadosh is created by Chandrama, बृहस्पति और शुक्र, वीनस. प्राइमरीली इनका सेकेंडरी भी होता है, ये हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वो उनके लिए जो गहराई से जानना चाहते हैं. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. नया नहीं बोलूंगा, ये है, पर इट्स यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स. सो प्लीज पे अटेंशन. If you read Ayurvedic books have mentioning of Ayurvedic astrology also, but उसको बहुत profoundly practice नहीं किया जाता generally. Ayurvedic astrology is a gateway of astrology. Ayurveda is already famous worldwide, but astrology को विदेश में ले जाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान अनिवार्य है. बराबर? शुरू करें? ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूं. लिख लिया सबने ये? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं वात प्रकृति से, वात दोष से. पहली बात, दो तीन पॉइंट्स आप समझ जाएं. वी आर बॉर्न वी आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर दोषा विच इज जेनेटिकली फिक्स्ड, और वी कैन से प्लैनेटरी फिक्सेशन होता है, प्लैनेट से फिक्स है. सेकेंड लेवल पे इट चेंजेस विद द एनवायरमेंट, इट चेंजेस विद द कर्मास. So if I'm a kapha person and I eat a lot of Szechuan sauce and मोमो की चटनी, let me give you some दिल्ली वाला एग्जाम्पल. मोमो बड़ा खाते हैं दिल्ली के लोग, और तीखा हुआ चटनी खाते हैं. सो मैंने अगर अभी बहुत सारा मोमो का चटनी खा लिया और शेजवान सॉस ले लिया और तीखा खाना खाया, मेरे शरीर का पित्त बढ़ जाएगा. ठीक है? रात को अभी नींद, अभी बहुत बारिश हुई, ठंडा है, कंफर्टेबल कूल. इफ आई कंज्यूम बनाना एंड कर्ड राइट नाउ, तो माई कफा विल इंक्रीज डिस्पाइट मी बीइंग अ वात पर्सन. वन इज फिक्स्ड, बट द अदर वन is environmental. Now I am there, my father is there. My father is a kapha vat person, I'm a vat pit person. Both of us eat five bananas as dinner. His problem will be more because he's already a kapha person, he's already an earth person. In me, the problem will not be too much. Making sense? It is all about elemental balancing. आयुर्वेद में मेडिसिन इसी प्रकार की होती है कि मेरा प्रकृति क्या है, आपके प्रकृति के अनुसार आपको दवाई दी जाती है, आपका फूड देखा जाता है.
आर यू गेटिंग इट? कुछ लोगों को तीखा कम लगता है, कुछ लोगों को मीठा कम लगता है। हैव यू सीन दैट? कुछ लोगों को बिटर, सम पीपल लव करेला, बिटर लेते हैं, अच्छा लगता है। सम पीपल कैनॉट टेक बिटर एट ऑल। इट्स ऑल टू डू विद योर एलिमेंट्स। हमारे टेस्ट हमारे एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर। एक और पार्ट हियर, एस्ट्रोलॉजिकली वन पार्ट इज फिक्स्ड, द अदर वन चेंजेस विद योर दशाज। आपकी दशाएं चेंज होंगी तो बॉडी में दोषा भी चेंज होगा। बराबर। तो ये प्रश्न मत पूछे मेरे साथ, ये बहुत सारे, ये तो एक पार्ट है। जब हम कल एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, आपके किस वार में जन्म हुआ है, भृगु संहिता में ये सब लिखा है, आपका जो तिथि के हिसाब से है, वो सब भी इन्वॉल्व होता है, बट दैट इज सेकेंडरी। लेट्स लुक एट वन थिंग एट अ टाइम। लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट वात दोष और वात प्रकृति इज। आर वी गुड टू गो? प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट वात दोष। वात पीपल, वात is vayu and space and air, movement, air. So imagine a person has too much of air. Imagine the qualities of air. How will the person be? The person will be lightweight. They will not gain weight easily. A Vata person is lightweight. They don't gain weight easily. पुअर मसल डेवलपमेंट, कितना भी नाउ आजकल बॉडी बिल्डिंग में सबको ऐसे बल्क होना है, नहीं होता आयुर्वेद में। आपको फिट होना है। इफ यूर वात पर्सन विल बी स्लिम फिट, इफ यूर कफा पर्सन विल बी ब्रॉड। दैट्स योर नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन। सबको ऐसा नहीं हल्क बनना है। स्लिम में इफ यू आर फिट, दैट इज अ वात फिटनेस। सो आयुर्वेद टॉक्स अबाउट फिटनेस, नॉट बिकमिंग एन आइडियल। दैट इज वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग एट फिटनेस। प्लीज अंडरस्टैंड। So Vata person will be slim, trim, do not gain weight easily. Their muscle density is less, bones visible, chest flattened. Imagine a person. How does air work? Air is also movement. The person moves a lot. हाथ पैर हिलाता है, सोते वक्त पैर हिलाएगा, शरीर छटपटाहट होता है। Yes, their veins are. See, if I talk about Vata, एक पूरा दिन चला जाएगा। इतने पॉइंट गिविंग यू मोटा मोटी। Veins are visible. The skin is कैसा? हवा चलती है तो स्किन कैसा होता है? ड्राई, कोल्ड, cold, dry, rough. These are characteristics of Vata. In winters, what happens? आप तेल लगाते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, होंठ फटते हैं, वात बढ़ता है। तो क्या खाते हैं आप? मूंगफली पट्टी खाते हैं, तिल का पट्टी खाते हैं, गजक खाते हैं। किससे बनता है वो? समझ में तो नहीं खाते ना। उस समय क्यों खाते हैं? बिकॉज इट हैज ऑयल्स, इट हैज हीटिंग नेचर। एंड यही तिल, काला तिल, आप शनि के लिए बैलेंस करते हैं। चढ़ा लेके तेल आप चढ़ाते हैं। Can't you use the oil? You can use the oil to balance your Vata. Because Vata gives you dryness, coldness, low blood pressure, dry skin. How do they look? चेहरा कैसे देखेंगे उनका? ये गला लंबा होता है उनका, दांत ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले दो टीथ जरा बड़ा होता है। द फेस, दिस चीक इज अंदर की तरफ, बोन्स विजिबल, ज्यादा मसल्स नहीं होते, वेरी लेस मसल्स, चीक अंदर। नाक का ये वाला जो पार्ट है, इट कैन बी लिटिल बिट बोनी, बोनी नोज, बोनी नोज इज वात। लॉन्ग नेक, बोनी नोज, हैंड्स, हाथ पैर पतले होते हैं। आईज, हाउ आर वात आईज? आईज आर लाइक दिस, स्मॉल, ड्राई एंड लस्टरलेस आईज। ज्यादा वो नहीं होता, ड्राई हो जाती आंखें। And the eyebrows are not well developed, eyelashes are not well developed, skin is dry, hair is scanty, कम बाल होते हैं, और हेयर टूट जाता है, और डैंड्रफ बहुत होता है। वात क्वालिटी है डैंड्रफ, ड्राइनेस, ड्राइंग ऑफ हेयर। हैंड्स एंड फीट आर ऑलवेज कोल्ड बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन। वात वालों का सर्कुलेशन ठंड वो होता है। बीपी चेक करेंगे हमेशा सिस्टोलिक डायस्टोलिक में जरा नीचे आता है। इफ आई चेक माय बीपी राइट नाउ, मेरा 120/80 होता है ना, मेरा 70 आता है, या तो फिर 110 आता है, जरा सा नीचे हमेशा। दैट्स अ वात क्वालिटी, है ना। प्लस माइनस तो नेचुरल बोलते हैं, तो आयुर्वेद में उनको समझेंगे आप। तो आप में मिक्स्ड क्वालिटीज हैं, कहीं कहीं वात होगा, कहीं कहीं पित्त होगा। ये हम कल समझेंगे एस्ट्रोलॉजी से, कि मेरे यहाँ पे वात है, यहाँ पे ऐसा होता है।
Like I'll give you the example of my face, my body. How will you look at astrological chart and get to know which organ has which dosha? You'll get to know that. Okay? So that's the Vat quality. ठीक है? So they are little bony, skeleton सा होता है शरीर में. Their chest is underdeveloped. Their hands, muscles are not very, they don't gain too much of muscles and they don't get too much of weight. कितना भी खा लेंगे, एपिटाइट फ्लक्चुएट करेगा. भूख लगेगी नहीं लगेगी, सडनली बहुत खाएंगे कम खाएंगे. फ्लक्चुएटिंग एपिटाइट, फ्लक्चुएटिंग मूड्स, फ्लक्चुएटिंग टेम्परामेंट्स. तो बहुत मूड स्विंग्स होता है, वायु जैसा है ना. अगर बैलेंस नहीं हुआ तो बहुत फ्लक्चुएट करेगा. ठीक है? मैं बार बार पानी पी रहा हूं. क्यों? ड्राइनेस है. शरीर में ड्राइनेस होता है वात पित्त वालों को. गला सूखता रहता है, इसलिए मैंने पानी अपने साथ रखा है. हर क्वालिटी, आप अपना चप्पल कैसे रखते हैं से लेके आप कैसे चलते हैं और कैसे आप बात करते हैं, विल टेल यू योर दोष. अगर आप ठीक ऑब्जर्वेशन रहे, फिर आके आपको लोग अम्यूज कर देंगे. अरे आपको कैसे पता? वात वाले, दे टॉक फास्ट, दे वॉक फास्ट, दे ईट फास्ट. देर ऑलवेज फास्ट इन देयर मूवमेंट्स. हड़बड़ी रहती है उनके जीवन में. क्विक, फास्ट. वायु है ना, वायु फास्ट होता है. फिजिकल लेवल पे कुछ डिजीजेस लिख लीजिए. दे आर प्रोन टू व्हाट? colon gets dry, so gas and constipation. They have dry hard stools, less urine production. ड्राई हार्ड स्टूल्स, बनी पूप, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बात बात पे, अच्छा मोशन नहीं होता, गैस होता है, इंडाइजेशन होता है, वेट गेन नहीं होता, भूख अप एंड डाउन, कभी लगती है कभी नहीं लगती. दे लव वार्म, गर्म खाना उनको अच्छा लगता है. दे ऑलवेज लाइक टू हैव समथिंग वार्म. ऑल नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू वात. नर्व का क्या प्रॉब्लम है? एडीएचडी, एंजाइटी. व्हाट इज एंजाइटी? आस्क द साइंस ऑफ एंजाइटी. एंजाइटी मीन्स योर नर्व्स आर नॉट काम. नर्व्स में बहुत इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए क्या करते हैं? बाल्टी लीजिए, नमक वाला पानी लीजिए, गर्म पानी लीजिए, पैड डुबो के बैठ जाइए 20 मिनट तक, एक राग सुनिए. आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है वो ग्राउंडिंग हो जाता है. इट्स सॉल्ट वाटर थेरेपी. यानी समुद्र किनारे आप चलिए पैदल नंगे पैर. ये सब क्यों बोला जाता है? सुना ये सब रेमेडीज? दीज आर ऑल प्लानिटरी रेमेडीज ऑल्सो. आई ओकेजनली डू इट. इट क्लीन्स योर ऑरा ऑल्सो. है ना? तो वात कौन से चक्र पे काम करना चाहिए, कौन सा ग्रह करता है, ये सब आपको जानना चाहिए. अगर आप वात प्रकृति को समझ गए, आप वात लिंक्ड इश्यूज भी बैलेंस कर सकते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वात इन द बॉडी. ये सब हम अभी बात नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी. पंचवात होता है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग ग्रहों से वात इफेक्ट होता है. कॉन्स्टिपेशन का अलग है, सर्कुलेशन का अलग है, कम्युनिकेशन का अलग है, और डिसीजन का अलग है. सो ऑल पेन्स इन द बॉडी, आर्थराइटिस एंड ड्राइंग अप ऑफ जॉइंट्स इज बिकॉज ऑफ वात. पैरों में घुटनों में दर्द कहां से? वात की वजह से. शनि को भी आप दोष देते, पैरों से शनि चढ़ रहा है. तो आर्थराइटिस में आपके जो जोड़े वो सूख जाता है ना, जॉइंट्स, इट्स बिकॉज ऑफ वात. एज यू ग्रो ओल्डर, वात इंक्रीजेस इन द बॉडी. ब्रह्मा विष्णु महेश आप सब मानते हैं, पूजा करते हैं. व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश कॉन्सेप्ट? ब्रह्मा विष्णु महेश कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड एज द त्रिदेव. एज द यूनिवर्स में, लेट्स टॉक अबाउट हमारे काइंड इसमें, एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडी में 3 प्रोसेसेस होती हैं. साइंस में क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. You grow up as a child, that's a kaphagenic phase. Grow up, gain. You are young, you burn out, metabolic phase. And when you dry out, जब एक वृद्ध कैसे सूख जाते हैं ना, that's the catabolic phase. तो वो वात फेज होता है ओवरऑल. है ना? कैसे हो जाते हैं? बॉडी श्रिंक होता है ना, ड्राई हो जाता है. दैट इज द. ठीक है? वात वाले, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ऑल पेन्स, एक दर्द, जोड़ों में दर्द, वात की वजह से होता है. नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स वात की वजह से होता है ना? वात की वजह से बहुत सारी और चीजें होती हैं. कॉन्स्टिपेशन, गैस, एज आई टोल्ड यू. लेट्स टॉक अबाउट देयर बिहेवियर. फिर हम मर्क्यूरी सैटर्न में आएंगे जल्दी से.
क्योंकि इतना डिटेल्ड है ना कि नाखून को भी देख के आप बोल सकते हैं नाखून कैसा होता है उनका। बाल, नाखून, आंख, सब कुछ आपको बता रहा है आप क्या हो, है ना। तो डैंड्रफ एक्सेट्रा, हैंड्स एंड फीट आर कोल्ड। Vath people are generally creative, active, spontaneous, energetic, jumping around all the time. ये करेंगे वो करेंगे, high energy, jumping around energy, enthusiastic, creative, jovial. ओके, जोवियल होते हैं, बट एनर्जी फ्लक्चुएट करता है। सडनली हाई एनर्जी, सडनली डाउन, सडनली एनर्जी हाई, सडनली एनर्जी डाउन। दैट इज अ वात प्रकृति, है ना। बहुत एक्साइटेड 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 एंड सडनली वेरी टायर्ड, दैट्स वात। क्रिएटिव, एक्टिव, एंथुजियास्टिक, बट जब हवा अच्छी चलती है तब बड़ा फ्रेश लगता है, बट वही हवा आप में क्या ला सकता है? टॉर्नेडो ला सकता है। सो मेंटल रेस्टलेसनेस, मन को एकदम मंकी माइंड मन शांत ना होना, टक 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 टक, सारा टाइम हिलते रहना, कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहना, वात का प्रॉब्लम है। लीडिंग टू मेंटल एंजाइटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, ये करना है वो करना है ये करना है, एट कुछ नहीं कर सकते, फिकल माइंडेड, यस। The mind is very restless mind, lack of concentration, lack of confidence, lack of boldness, and prone to fear, anxiety, and nervousness. सडनली लो फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, सडन डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों भैया? एयर प्रेशर डाउन है, वायु का प्रॉब्लम है, वायु इज नॉट वर्किंग फॉर यू। ये काम करते 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 कंसिस्टेंसी नहीं, कुछ और करेंगे, ये करेंगे वो कर देंगे, तो विल पावर नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। इसलिए हम हर पूजा पाठ के पहले सब कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कौन से देव की पूजा करते हैं? क्या बोलते हैं हम? गणपति पापा को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता, है ना। वक्रतुंड महाकाय, हाँ गन्नू भैया सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। दैट मीन्स जो विघ्न है उसको आप हरो। तो मूलधार जो चक्र होता है, जो अर्थ एलिमेंट से गवर्न होता है, इसलिए हम मिट्टी का बनाते हैं, इसलिए हम डूब ग्रास यूज करते हैं। अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करके आप वात बैलेंस कर सकते हो, मूलधार की साधना करते हैं। लाल रंग का आलता, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग शादी में क्यों लगाते हैं? मूलधार के लिए लगाते हैं, ताकि आप स्टेबल सिक्योर फील करो। इनसिक्योरिटी वात की वजह से आता है। जब आप चेंज करते हो, ट्रैवलिंग ज्यादा करोगे तो वात बढ़ेगा। सब जानना चाहिए, एक्सेसिव ट्रैवलिंग इंक्रीजेस वात। छटपट 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 ट्रैवल करते रहेंगे बट शांति से नहीं बैठ पाएंगे, ये वात प्रकृति है। हर जगह अनस्टेबल, फोमो होना, वात। ठीक है, ये सारे वात के क्वालिटीज है। दे स्पीक फास्ट, टॉक फास्ट, बात कर जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगी। ये सारे कुछ क्वालिटीज हैं वात प्रकृति के। ठीक है, इसके डिटेल में अगर हम समझे, पंचवात होता है, 5 जगहों में ये वो काम करता है। प्राण, अपान, समाना, व्यान, उडाना, इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, वेबिनार है, इट्स नॉट अ कोर्स। वी शुड बी लिटिल बिट ऑन द टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्क्यूरी वात, शनि का वात और राहु का वात। ये 3 ग्रह अलग अलग तरह के वात को इफेक्ट करता है शरीर में। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू नो दिस, you know your life. It's a very interesting science. Now, as I'm going to talk about Mercury Vath, I'm not going to tell you anything from the books. Books have it. That is separate. I'm going to explain you my nani. My nani was a Mercury Vath. I'll tell you her characteristics. Mercury Vath people is a healthy side of Vath. Not very dry, they're skinny, they're slim, but fresh looking, good looking. सुंदर दिखते हैं, यूथफुल, लावण्य से परिपूर्ण, एक यूथफुल अपीयरेंस होता है उनका चेहरा। कुछ लोग ना बूढ़े नहीं लगते, बहुत यंग लगते हैं, जवान चेहरा होता है, देखा है आपने? दे लुक वेरी यंग, बच्चों जैसा चेहरा होता है। मर्क्यूरी की वजह से होता है, भारी भारी फीचर्स नहीं है, बच्चों जैसा है। यस और नो?
They look very young, pretty and young. They can be tall or short, but moist body, unlike very dry Vat. Yes, they are very much into art, dancing, football, basketball, or intellectual things like chess. So my nani used to play Sudoku and she used to sing Ravindra Sangeet, and full of life she was. So she was a Mercury Vat person. So you can see people around you and analyze what is the planetary dosha. Slim and very good sense of information. She should read the newspaper. The Mercury people have good sense of relationships, good sense of this thing. Buddh, mane buddhi. They're intellectual and communicative. Mercury gives you good intellectual, buद्धि, ज्ञान योग. By the way, यहाँ पे एक छोटी बात और करूंगा मैं. आपका मार्ग क्या है साधना का? आप भक्ति योग में है, कर्म योग में, ज्ञान योग में है? ये आपका प्रकृति डिसाइड करता है. आपको पता था ये इंटेलेक्चुअल वाले जो होते हैं ना, ज्ञान योगी, ये वात प्रकृति वाले होते हैं. उनको भक्ति वक्ति नहीं जमता. उनको इंटेलेक्चुअली ज्ञान योग ज्यादा अट्रैक्ट करता है. So these Vata people, if you're a Vata person, you are more likely, not necessarily, depends on planets also, to gravitate towards Gyan Marg of Yoga. आपको लॉजिक चाहिए हर चीज में, तो Mercury wants logic. So tomorrow you will see your chart. You will see in which relationship Mercury is there. That relation will be happy-go-lucky. They're always happy-go-lucky, free, they move on easily. They are love plants. They love nature. They love nature walks. They love environment. And that is the reason why I'll show you my chart tomorrow. In my energy house, there is Mercury. In my career house, there's Mercury. So अपने आप बॉटनी ऑनर्स किया, फॉरेस्ट्री किया, और अभी इंटेलेक्चुअल एंड कम्युनिकेशन में हूं मैं. मुझे अपने आप दिशा मिल गया लाइक. एंड मजा आता है. आई डोंट फील आई नेवर गेट वर्कड अप. मैंने यूएस में जब हमारी क्लासेस होती थी, मैंने रात को 2 बजे तक योगा करवाया है. मैं कहा मुझे करना है, मुझे मजा आता है. रात को 2 बज रहे शिमला में, फरवरी की ठंड, यूएस में दिन होता था. फिर मैं कहा नहीं यार, सुबह 5 बजे करते हैं, मेरा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा. आई वाज सो डेडिकेटेड because it's coming naturally. If you know which planet you need to work on, and I'll be telling you a secret also. How's my communication? Is it decent enough? Good enough? It was not like that earlier. I used to fumble while talking. So what did I do? A yogic cheating. Shankha Mudra, Ujjayi Pranayam regularly, balance my Vishuddha Chakra, and now I can speak like this. Easily. हमारे आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम हुआ था, हमको बुलाया था उनको संबोधित करने के लिए. So I was the anchor. तो ये सब होता है जब आप अपने चक्रों को सिस्टमैटिकली बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. तो देयर कम्युनिकेटिव, इंटेलेक्चुअल. क्या बट नेगेटिव साइड में क्या प्रॉब्लम होती है समझ जाइए. मर्क्यूरी वालों का एक्सेसिव थिंकिंग, एक्सेसिव टॉकिंग कैन बी अ प्रॉब्लम, और टू मच ऑफ थिंकिंग, हेंस इंट्रो. कम्युनिकेशन लेके प्रॉब्लम आएगा. तो ज्यादा बोलेंगे या तो नहीं बोलेंगे. बैलेंस कम्युनिकेशन. हम जो मर्क्यूरी विन्यासा कराते हैं, मर्क्यूरी की साधना कराते हैं, तो हम क्या कराते हैं? सारा जो चक्रा बेस्ड योगा, पहले हम मूलाधार पे काम करते हैं वात के लिए, फिर हम विशुद्ध चक्र पे और आज्ञा चक्र पे आते हैं. सिंपल. अब करके देखिए कितना आनंद आता है. आई एम माई सेल्फ एक्साइटेड. हम पूरा उस तरह से करते हैं. What people have a sensitive nervous, sensitive digestive system. That's common. Their biggest problem, you know what it is? Lungs, prone to allergies, heart palpitations, and excessive thoughts, hence mental afflictions. So हम क्या करते हैं? Adi Mudra for the lungs, Hridaya Mudra for the heart, Hakini for the brain. We do Kapalbhati in that. Simple. And then we do the second. 2 दिन में कराते हैं. अगले दिन Simgarjanasana to release the impurities of the Vishuddha Chakra and improve your communication. I have to be a little fast, ma'am, please. I have to be a little fast. Otherwise, 11 बजे तक मुझे बात करना पड़ेगा. And I can't do that. Please be here completely. You'll be able to. Vata people are fast. Now you know my dosha. Vata people are fast. If I was a Kapha person, I would have been talking like this, in this monotonous speech and slowly. So if you know a Kapha person, they will always speak very, very slowly. Okay? So please pay attention. Be absolutely attentive, because Vata people are alert. Okay? So Mercury is a healthy Vata.
आ जाते हैं शनि पे, जिनको आयुर्वेद पता है उडान वायु होता है। ये मैं अभी बोल नहीं रहा उडान वायु क्या है, वी टॉक अबाउट दिस इन द प्रोग्राम इन डिटेल। शनि को डराते क्यों है? व्हाई इज शनि, व्हाई इज इट कॉल्ड अ मेलेफिक प्लैनेट? हैव यू एवर आस्क्ड द क्वेश्चन? ऐसे ही बदनाम करके रखा है कि शनि से डरना है एंड दिस एंड दैट एंड द फंडामेंटल लॉजिकल रीजन इज बिकॉज Saturn leads to two issues: Apana Vayu problem and Vyana Vayu problem. What are these? It disturbs your circulation and expulsion of wastes from the body. That's it. So when these things happen, what happens? Your body becomes toxic because your liver, colon, constipation is also detox is not happening properly. That is Shani's problem. Shani is a cold planet. लंगड़े बोलते हैं ना, शनि की लंगड़ाते हैं क्यों? It's said it is a logical reason. नजायज पुत्र है सूर्य के, उनका बनता नहीं है. Why? Because sun increases circulation, Saturn reduces circulation. That's it anatomically. When your circulation is poor, your temperature of the body is cold, same Vata issues. Your body's temperature, BP is low. Body is always fatigued and tired. Very easily it gets tired. You become cold, pessimistic. Temperature and temperament, they become cold and pessimistic. That is the negative effect. That's it. That's why it's considered a malefic planet. Now, if you know how to bring about proper detoxification and expulsion from the body, this is called Apana Vayu Mudra. And much more. मलासन वलासन करते हैं. अगर आयुर्वेद यूज करें, कोलन को साफ रखें, आप शनि को बैलेंस करेंगे. हमारा शनि विन्यास है, उसमें हम सूर्य नमस्कार वगैरह डू द ऑपोजिट ना. Increase the circulation. What is Surya Namaskar? Surya Namaskar is what? Increasing the circulation. Let me talk about a little science here. Shani gives you a lot of chronic diseases because of toxins in the body and poor immunity. What is immunity? Ask a science person. What is immunity? It is the, lymph nodes, lymphatic drainage, white blood cells, lymphocytes. सुना है ये सब टर्म्स कभी? ये इम्यूनिटी आपका, सोचिए. मैं ज्यादा हैवी नहीं जाऊंगा. WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैक्रोफाज एंड ये सब आते हैं उसके अंदर. ये सेल्स जो बाहर से पैथोजन आते हैं उसको खा जाता है. इट किल्स इट. नाउ इफ यू हैव अ गुड सर्कुलेशन ऑफ प्राणा स्लैश गुड सर्कुलेशन ऑफ lymphatic system is active, your Surya Namaskar you're doing regularly, an infection goes from the nose, an infection goes from the mouth, it is killed right there. That is immunity. Saturn doesn't let this circulation happen properly, hence diseases happen. As clear as that. You do the regular practice. शनि कैसे बैलेंस करना है? हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, एंड शनि गिव्स यू बेस्ट रिजल्ट्स. आप करके देखिए हार्ड वर्क, सुबह उठ के रेगुलर योगा करके देखिए, शनि तो क्या सब बैलेंस हो जाएगा. एंड कल आप देखिएगा मेरा चार्ट, शनि पहले घर में बैठा है एंड it's giving me good results. Why? First, in which Rashi it is sitting. Second, what is my karma? Shimla ke weather mein, I can be the most laziest person on the planet. It's such a lazy weather here. सारा दिन बादल बादल, ऐसा लगता है कि बस सो जाओ. If I don't do Hatha Yoga, Shani will take over me. All the negative effects of Shani will happen. Shani gives you features which are very Vata-like. Bade daant, not very good looking. Shani gives you features which are little distorted. Bade bade haath, body chota. Disproportionate body is given by Saturn's effect. Chronic diseases, mentally pessimistic, critical, always very, menial, कंजूसी, क्योंकि उनको आसानी से सब कुछ मिलता नहीं. Lethargy, tiredness, procrastination, Shani ka problem. Whereas when you balance Saturn, it gives you permanent good results and the ability to come out of any disease and पक्का एकदम बढ़िया, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. That is Saturn.
So you have to be hardworking and persistent for that. ठीक है? That's Saturn. Next, Rahu. Rahu Vat. Rahu Vat is more of the intellectual mental Vat, Adya Vat, primordial Vat, decision making and thoughts, mental Vat. बहुत जरूरी है. They are also Vatagenic. They have a little bit of a dark, एक conspicuous energy होता है. They are not as clear. Rahu people have a little bit of a susceptible. You can't make out what's going on with them. That's Rahu energy. Rahu gives you excessive desires, but बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े आइडियाज, इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज, बट नो इम्प्लीमेंटेशन. When you have big ideas, big desires, but no action, what happens? Unfulfillment, and hence depression, then addiction, and then self destruction. That is राहु का प्रॉब्लम. बहुत कॉमन है विदेशों में तो. अरे हुआ नहीं, चलो लेट्स गेट ड्रिंकिंग, लेट्स गेट इनटू अल्कोहल, लेट्स गेट इनटू ड्रग्स. एक्सेसिवनेस ऑफ एनीथिंग इज राहु. बढ़ा देता है, डिजायर्स बढ़ा देता है. Intellectual, of course, mental level पे it gives creativity, mass media, creativity, out of the world performance, but again a Vata problem. That means lack of consistency, lack of discipline, lack of balance, lack of motivation, lack of grounding. Now, राहु को बैलेंस करने के लिए हमने एक राहु मेडिटेशंस बनाया है. And I'm telling you, राहु का जो विन्यासा है, it is the most interesting one. Because we first work on Muladhara Chakra for Vata. Then we work on Manipur Chakra. Then we work on Agya Chakra. Don't you think it's more relevant? मूलधार के लिए मूलबंध यूज करते हैं 3 मुद्राओं के साथ. मूलधार मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्मय मुद्रा. मणिपुर पे आ जाते हैं दुर्गा मुद्रा, आदि मुद्रा, मतंगी मुद्रा. फिर हम आ जाते हैं आज्ञा चक्र में शिवलिंग मुद्रा, नाग मुद्रा, नासिग्रह, and the whole process goes on like that. And I'm telling you, people have got tremendous benefits. Then you do your remedies, no problem. आप दुर्गा चालीसा पढ़े, किसने मना किया? करिए ना. आप प्राणायाम के बाद माँ दुर्गा की साधना करें. हम भी तो करते हैं, हम चंडी पाठ पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा मुद्रा, मंत्र है दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा एक्सेट्रा. You can save yourself. Very interesting when I talk about it in the program, ग्रह चिकित्सा में इवन आपका चार्ट देख के आप बता सकते हैं राहु मेक्स यू ससेप्टेबल टू डार्क अनसीन एनर्जीज. बोलते ना भूत बाधा हो गया, इसने पकड़ लिया, चिमट गई आत्मा. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम. देर आर एनर्जीज विच आर गुड, बैड, all type of energies. A person becomes susceptible to these energies if Rahu is imbalanced. Okay? So if you check it, sometimes you will feel, these energies make you suddenly having lust, uncontrolled desires, uncontrolled anger, and sudden anxiety, sudden depression. Rahu does it. Clear? This can be reduced by, of course, you have many ways. I would any day say yoga is the best. Don't depend on any external stones. Rather do your thing, then you go for the stones. Clear? Rahu Adya Vat, primordial Vat. Decision, always confusions, always mental anxiety, depression, all mental addictions. If you don't have a balanced mind, you balance your Rahu. If you have a very fresh, pleasant mind, तो अपने स्वर विज्ञान से ये करते हैं हम बैलेंस. नाड़ियों से करते हैं. प्राणायाम से आप क्या करते हो? अपने नेगेटिव कर्मा को आप बर्न आउट करते हो प्राणायाम से. बराबर? चलिए अब आते हैं पित्त दोष पे. Are you all on the same page? I have to be in this pace. I cannot be slower than this because it will take too much of time. Right? Please pay attention. Yeah. And let me be very clear. I'm introducing a concept to you. It's a webinar. I'm introducing a concept. Teaching is a different story altogether. तब तो अलग zone होगा. है ना? I'll talk about that also. Those who are genuinely interested, we have elongated programs which I have made in a very non-commercial level in Bharat. I'll talk about that also tomorrow. आज आप फ्लो में रहिए. ध्यान ले आइए. पित्त प्रकृति और पित्त दोष. पित्र दोष नहीं है, पित्त दोष है. PITTA, पिता, not pitra.
पितृदोष राहु केतु से लगता है, राहु से केतु से, जब चंद्र मंगल के साथ, दैट इज सेपरेट स्टोरी. Pith people, now see, I'll just visualize my prime minister. He's a pith person. Okay. Our Modi ji, his body's type. Let me give you an example. I'll give you three examples. Modi ji, Hrithik Roshan, and Aishwarya Rai. How are their features? Moderate body, not too broad, not too slim. Moderate body, glowing skin, sharp pointed nose, bright, shiny, penetrating eyes, pink lips, sharp features. These are all pith qualities. Smooth, silky hair, but prone to hair fall and early graying is caused by pith. Every dosha gives you positive, negative. It's up to you. Okay. Pith people are generally, their body is warm. Their hands and feet are warm. High level of circulation. High circulation. So hands and feet are warm. And the skin is prone to boils, hives, rashes. Summers में उनको ज्यादा दिक्कत होती है. कुछ लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत sweating होता है. They have pith, their body has pith in the body. Yes or no? There are some people who hate summers. Excessive sweating, बगल से कान से हमेशा sweat ज्यादा निकलता है. It's a pith prakriti. Your body has excessive heat. And they like cool drinks. They like cold places. They love Shimla. I love Shimla because I have pith in my body. I love it. 2 दिन चंडीगढ़ में गया, भाग के आ जाता हूं. मैं कहा बाबा मैं नहीं रह सकता. So it is a pith in me that gets triggered. Get to know your dosha. Here I'm AC ki hawa, natural AC. Because my pith gets triggered. You get sweating a lot. That's pith. Clear? हमेशा AC चाहिए, हमेशा ठंडा चाहिए, शरीर में गर्मी. That's pith. Pith means, on an anatomical level, their bodily gastric juices and acids are higher in secretion. शरीर में जो एसिड्स हैं, जो शरीर के रसायन, व्हाट आर द एसिड्स? स्टमक में क्या निकलता है? गॉबलेट सेल्स होते हैं. एनी एनाटॉमी स्टूडेंट हियर? एनी बायोलॉजी स्टूडेंट? हाँ, दीपाली जी है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, काइनेज इज एंटेरोकाइनेज निकलता है, ट्रिप्सिन बाद में निकलता है डिओडिनम में. These enzymes are higher in this person. Bas. When this is high, what happens? Their body is more acidic and they're always hungry because juices are high. ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो बार बार भूख लगती है. छोटे छोटे इंटरवल्स में उनको भूख प्यास ज्यादा लगती है. And also their hormones are higher in secretion. That's why their sexual urges is also higher than others. ये आप मांगलिक वांगलिक जो बोलते हैं ना, ये सब उससे कनेक्ट होता है. Little bit. Don't go all the way, because from the Ayurvedic point of view, if you and your partner have a similar sexual drives, it's fine. Otherwise, it will be a problem. So you should know. So pith wale, they have a higher taste for life, pleasures, and even luxuries and all. Pith love it, glamour, etc. They're bold, they're confident, sharp in their speech, good leaders, good communicators. Okay? All great leaders have pith quality in them. They can lead, they're bold. How can you increase your pith? Yoga can help you. If you're a timid person, coward person, low boldness, very thanda, people are using you and you are suffering, you stimulate your Manipur chakra and your Pingala Nadi. You're fiery. If you're too fiery, always heated up, always angry, you should do the reverse. Calm yourself down. And balance is what life is all about. Okay? So pith people, physically, they suffer from heat in the body, higher blood pressure, ulcerations in the stomach and mouth, peptic ulcers, acid refluxes, excessive urges, conjunctivitis, their eyes become red, they can't heat intolerance, नाक से खून वो निकलता है गर्मियों में,
शरीर में बहुत गर्मी, एक्सेसिव स्वेटिंग। यू कैन लुक एट योर मॉर्निंग में आपका स्टूल कैसा निकल रहा है, उससे आपको पता चलेगा आपको प्रकृति कैसा है। ड्राई हार्ड स्टूल वॉज बात। If your body has high pitta, how will be your stool be? Liquidy, very liquid and plentiful. बार बार टॉयलेट जाते हैं ये लोग, बार बार भोगी होते हैं ना, बार बार खाएंगे, बार बार टॉयलेट जाएंगे, बार बार टॉयलेट में यूरिन एंड फीसिस ज्यादा होगा। एंड लिक्विडी, तो यू नो योर पिथ इज हाई। ठीक है, सी, नो नीड टू गो टू आयुर्वेदाचार्य, योर टॉयलेट इज योर डॉक्टर। सुबह सुबह देखिए किस तरह का आपका मोशन हो रहा है, सो यू गेट टू नो। नाड़ी देखना है, ये क्वेश्चन है, अरे आयुर्वेद का ज्ञान ले लो, आप बैठे बैठे समझ जाओगे आपका क्या बढ़ा हुआ है, इफ यू जस्ट नो योर टेम्परमेंट्स एंड योर टेंडेंसीज। Pitch people are bold, confident, smart, outspoken, they are fiery, good. But when it gets negative, the same boldness, confidence, leadership quality becomes domination, anger, frustration, irritation, stress, poor sleep. Bath with pith both cannot sleep well. Insomnia because of stress is pitta. Insomnia because of anxiety and restlessness and excessive electricity in the nerves is because of Vat. इसलिए पैरों के तलवों में हल्का सा तेल लगा के सोइए, अच्छी नींद आएगी। ससमे ऑयल, it calms you. There are many ways of calming you down. Simple, you can sleep very well. Some pranayams you can do to sleep. So if you have both, you need both the solutions. Okay, so they have acidity, etc. Mentally, they can be argumentative, angry, frustrated, stressed, irritable, sometimes dominating. And rest we talk about in planets. चलिए आ जाते हैं। सूर्य कौन कौन करता है पित्त शरीर में? Who does it? Let's blame the sun in your chart. Let's blame the Mangal. And let's blame, don't blame it, know it. Ketu. Ketu is also like it has secondary qualities also. Now please pay attention. Tomorrow as we see the charts, you will be seeing that similar relationships also. I'll show you relationship chart. अगर मदर में कोई पित्त प्लैनेट आ जाए, सो आपका अथॉरिटी, डोमिनेशन कौन सा प्लैनेट करेगा वो भी क्लियर हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ होंगी आपकी, ये आपका मंगल डिसाइड करेगा। डिपेंड्स इन मेनी मोर फैक्टर, ओवरऑल देखेंगे कल। सन, primarily healthy side of pith, primary pith, secondary vat, dry heat is sun. Dry heat is sun. It is just 1 second. Okay, sure. Okay. Sun is dry heat. Is my voice clear? ठीक है ना? Dry heat. So dry heat, Vat, Prakriti is a secondary dosha. Primary is Pith, secondary is Vat. Good circulation. And sun gives you good circulation. The face has a bright complexion. The face has a bright complexion. Eyes are very shiny, bright. The face has a, goldenish tinge. ये आप सूर्य नमस्कार करोगे ना, अपने आप चेहरा चमकेगा। आप सूर्य की साधना करें, चेहरे में एक सूर्य वाली तेज रहेगी आपके। Eyes will be bright and shiny. But there have an early graying or hair fall is also because of sun. Higher circulation ensures good immunity, good digestion, no chronic diseases. You can fight the diseases well. So, good immunity, good circulation, little bit higher BP. Clear? But prone to what? All prith problems. Sara responsibility khud lena hai. They live a very royal aristocratic life. They work hard, they earn well, they generate good resources, but they overdo. सब कुछ मुझे करना है, मैं
मैं करूंगा, मैं करेंगे। तो रात रात को जगेंगे, कॉफी पिएंगे, एक्सेस काम करेंगे, और ओवरडू करते हुए हार्ट फेल हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। आपने देखा आजकल यंग यंग लोग कैसे जिम में कार्डियो करते करते, या फिर बैडमिंटन खेलते, कल ही हैदराबाद का मैं देख रहा था, दे पास आउट। हैव यू सीन दैट? इट इज बिकॉज दे आर ओवर स्टिमुलेटिंग देयर son's energy. That's why. Should know. They overdo the responsibility, over ज़्यादा काम करेंगे, so heart health, cardiovascular problems, ulcerations, etc. because of poor lifestyle. Then they become argumentative and authoritative. हर चीज में मैं करते हैं, दबंग होते हैं, तो लेटर लाइफ में रिपेंट भी करते हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं। ये भी हो सकता है। ओके। स्ट्रेस लिंक डायबिटीज, यस। स्ट्रेस लिंक डायबिटीज, बृहस्पति में ओवर ईटिंग लिंक्ड डायबिटीज इज बृहस्पति। अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं मंगल पे। मंगल इज लिटिल बिट ऑफ सेकेंडरी कफा दोष, सो बॉडी बिकम्स ह्यूमिड, body becomes not dry heat, it's heat and water, so pathogens grow more, body is more humid, so there is more infections, infectious diseases. Infectious diseases are more, infectious diseases are more, pathogens are more. सिंपली देखा जाए, बॉडी में ज्यादा एसिड्स होते हैं, बॉडी में हायर एसिड्स, हायर पैथोजेंस, हायर इन्फेक्शंस is a Mars problem. Their face looks like Martians, Martian militant look. तेज तेज बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल, they bruise and bleed easily. Even their face has very sharp features and sometimes very militant looks, aggressive looks. एंड जरा डिटेल में एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो कई बार कट वट भी होता है, अगर हमें पहले हाउस में कुछ हो ना, तो चेहरे में कट वगैरह भी होता है मार्स की वजह से। गिरते पड़ते हैं, चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होता है। क्यों होता है? Because their blood pH is acidic, and it's always their body is restless because of that acidic blood condition. They will धड़ 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 सीढ़ियों से उतरेंगे, जल्दबाजी करेंगे, किसी ने ओवरटेक कर लिया तो ईगो पे आ जाएगी बात, फिर एक्सीडेंट होगा। ये जो हरकतें होती हैं मार्स की वजह से होती हैं, शांति नहीं है शरीर में, है ना? एंड डोंट यू थिंक द ज्योग्राफी ऑल्सो इफेक्ट्स? ऑब्जर्व, don't you think some places have more aggressive people than other places? Depends on the climate also. यही लिंक है, ज्योग्राफिकली, आयुर्वेदिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली देयर आर लिंक। सम प्लेसेस जहाँ लड़ाई होती रहती है हमेशा, वहां पे उन ग्रहों का एनर्जी ज्यादा होता है। इट्स अ कॉस्मिक रेजोनेंस। बैटल ऑफ पानीपत, हमेशा बैटल ऑफ पानीपत क्यों? उस एरिया में इतना युद्ध क्यों हुआ उस रीजन में? सम प्लेसेस हैव दैट वाइब्रेशन एंड पीपल ऑल्सो कैन गेट अफेक्टेड इन दैट एरिया इफ दे आर बोर्न देयर। दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट द प्लेस ऑफ बर्थ and where you are, isn't it? If I'm in a very, for example, I'll give you my example. शिमला के लोग इतने सरल, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, सब शांति से रहते हैं। It will affect you on an environmental level, yes or no? Satsang is one of the remedies of Rahu. What kind of people you mingle with? Mars, they love eating spicy, meat, non-veg, alcohol, nicotine, all acidic food they gravitate towards. अपने आप उनको अच्छा लगता है ऐसे खाना, और वो आपको और खराब। देयर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इज लिवर एंड पैंक्रियास, सो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैंक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। दे हैव हाई एनर्जी, इफ नॉट चैनलाइज्ड वेल दे हैव ऑल द प्रॉब्लम्स। इफ चैनलाइज्ड वेल दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, एंड courageous, fearless, and they can, take out very good things. But the same energy, I have a friend of mine, I give his example. This guy was doing a lot of yoga and gymming. Till then, everything was fine. And he had a very strong Mangal effect. His body was, sweaty and very moderate. He was a Mangal effect. Now, this guy got married and got sedentary. घर में बैठे बैठे कुछ करना नहीं, ये वो, and it turned so violent.
he got separated, and he got violent with his partner because the main reason was his leaving the physical workout. That excessive cortisol, excessive stress hormone, excessive energy was not channelized in gym, in yoga, in sweating, and then calming down. And it channelized in anger, stress, argument, frustration, irritation. So you can channelize your excessive Mangal energy. Higher sexual drives, which can be sometimes excessive. What to do? Go for a hike, run, jog, swim, take out and stress out yourself. That's how the Mangal Vinyasa has been created. Clear? Yes, they work well in physical, sports, authoritative professions, lawyers. They love to argue and all these. Clear? And highly they can be karma yogis and self-disciplined if balanced. Clear? आ जाते हैं केतु पे. Quick few points on Ketu. Primary pith, secondary Vat. Primary pith, secondary Vat. They have a mix of both. They can be the too tall or short. They have pith qualities. They're like very sharp eyes. Um, hmm, sharp eyes. केतु का सबसे बड़ा रेमेडी पता है आपको क्या है एस्ट्रोलॉजी में? लेट गो ऑफ द पास्ट. सुना है कभी आपने? कोई एस्ट्रोलॉजर है? अपने पास्ट को लेके ना आप वो मत करें. रेंटिंग बोलते हैं. यू डोंट कीप क्रिबिंग अबाउट द पास्ट. दैट्स केतु का एक नेगेटिव इफेक्ट. You know what the best solution for Ketu is? The Bandh. You know what Bandh is? Yogic Bandhas. Bandh. Bandh releases your Granthis in the body. Now, what is Granthi? Emotional knots. शरीर में अटका हुआ है चक्रों में. ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि के लिए मूलबंध, उडियाना बंध, जलंधर बंध और महाबंध जो हम योग में करते हैं. एंड स्पाइनल ट्विस्ट्स. रामबाण फॉर केतु. A headless body always seeking, seeking, seeking. Wherever it goes very deep into it. बहुत गहराई में चले जाते हैं. Generally socially eccentric. Socially they're not very, social. They love solitude. They are introverted. Highly reactive. ज़्यादा छेड़ोगे तो बहुत, they get reactive. अपने आप they gravitate towards violence and catastrophes. पता नहीं कैसे. अपने आप चले जाते हैं जहां पे कुछ कलेश होता है. Because senses are less. They don't sense if not checked. एक सिक्स सेंस होती है ना, उनको डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है. केतु का ही होता है. केतु आपको मोक्ष भी प्रदान करता है, डिटैचमेंट लाता है. लेट इट बी, जाने दे, कोई बात नहीं. दैट इज ऑल्सो केतु. बट दे हैव टू रिलीज द बैगेज ऑफ ओल्ड कर्मस टू गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ केतु. एंड केतु के लिए जो भी साधना में आप कल अपना केतु देखिएगा, पक्का दृष्टि पड़ेगा. जो लोग साधना इन सब चीजों की तरफ आते हैं, कल्ट में आते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में है, जरा सा डिटैचमेंट है लाइफ में, वो आपको बताएगा कि आपने पास्ट में बहुत कुछ कर लिया है बट उस बैगेज को खत्म करना है. दैट्स व्हाई दीज बंधास आर वेरी वेरी पावरफुल. Anatomically speaking, to balance Ketu, you balance your neuromuscular coordination. So accordingly, we give the food, nerve and muscles. They have neurotransmitters. So there are some foods for Ketu, which has good flavonoids and some nice जो न्यूरो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें होती है. तो ये सब अगर आप जाने, जरा सा ज्ञान रखें, आप केतु को बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. Clear? That's Ketu. Let's go ahead. There are two very important points of Ketu. And it gives you detachment. Rahu gives you excessive desires. This is detachment. Wherever you will find Ketu tomorrow in your chart, you will find that aspect of your life you are little detached from within. Or maybe we'll talk about that tomorrow. काफी गहराई से उसमें चले जाएंगे उस रिलेशन में, ये भी हो सकता है, या तो फिर डिटैच्ड. चलिए, Kafadosh. By Kafadosh, we'll be winding up today's session. I hope you're finding the flow, understanding what I'm trying to say. It is not conventional. It is not, you will find, it is a culmination of many different sciences. I'm talking neuromuscles, neuromuscular aspect, Ayurveda, astrology, a little bit of chakras. So it's an amalgamation of multiple, different sciences and science itself. Okay. Kafadosh.
Kapha. Kapha dosh is a mixture of earth, water and earth element. When you mix earth and water, क्या बनता है? क्या बनता है? कीचड़ बनता है ना, मक बनता है। यही उनके शरीर में ज्यादा होता है। बल्क, एंडोमॉर्फिक, हैवी बॉडी, वेल डेवलप्ड बॉडी, वेल डेवलप्ड मसल, हाई बोन डेंसिटी, घने घुंघराले बाल, बड़ा चेहरा, भारी भारी गाल वाल में भरा हुआ गाल, बड़ी बड़ी आंखें, लॉट ऑफ वाटरी आईज, पानी है शरीर में बहुत, गोल नाक, नाक का साइड सामने जरा गोल होगा। नाउ यू माइट हैव अ बिग फेस बट स्मॉल आईज, यू नो कफावात पर्सन। Mix, you will see our features and get to know. You have a mixture of all. We all have mixtures of all. That is what tomorrow you'll get to know with the knowledge of degree and drishti of planets and the presence of planets. I will show you my face and give you the example. I'm a mix of what? I'm a primarily Vat, secondary Pith. But my skin and hair has some Kapha qualities. Why? I will show you that where the drishtis and degrees are falling, you'll be awestruck. That, oh my God, seriously? That's how my character is. That's how my energy is. That's how my life pattern is. Basics. Don't think that हम कंसल्टेशन करने बैठ जाएंगे. No, that's separate. आप देख पाएंगे अपने लाइफ को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। कफा दोष का गाल भारी भारी होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, है ना। गर्दन जरा सा ऐसा होता है, बहुत लंबा नहीं होता। वेल डेवलप्ड चेस्ट, वेल डेवलप्ड हैंड्स, वेल डेवलप्ड मसल्स, ब्रॉड बॉडी, हेवी हिप्स, हेवी थाइज। शरीर में एक भारीपन होता है। दैट्स कफा दोष। शरीर जरा सा कूल होता है बिकॉज इट्स मेटाबॉलिज्म इज स्लो एंड रिटेंशन इज हाई। रिटेंशन माने पानी शरीर पकड़ता है, इनको ज्यादा भूख नहीं लगती। दे कैन गो लॉन्गर विदाउट फूड बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज स्लो। आप एक पित्त वाला और एक कफा वाले दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, पित्त वाले को बार बार भूख लगेगी, कफा वाले को भूख नहीं लगेगी, झगड़ा हो जाएगा। अरे क्या तुम बार बार रुकते रहते हो, भूख लग रही है, अरे तुम्हें समझ नहीं आता, एंड देन दे फाइट। इफ यू नो आयुर्वेद, डोंट यू थिंक यूल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ? माई मदर इज, मेरे घर में हमेशा मुरमुरा मखाना खाकरा रहता है कि मुझे भूख लगती रहती है ना। एंड माई फादर एंड मी व्हेन वी ट्रैवल, आई कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड ही डज नॉट ड्रिंक वाटर एंड ही सेज व्हाट इज योर प्रॉब्लम। मैं भी तो बैठा हूं, मैं तो पानी नहीं पी रहा। मैं कहा पापा आपने मेरा कोर्स ही नहीं किया, कैसे समझाऊं? मैं कहा आप कफा वाले हो, आपको नहीं चाहिए उतना पानी। I keep drinking water. You know, so every behavior, attitude, nature, feeling, emotion, the way you talk, speak, everything is governed by doshas. You know yourself, you know your. Now, touch wood, I stay with my family. And I love staying with my family without any arguments. कहीं मैं सुन रहा था कि परिवार के साथ रह के देखो असली में पता चलेगा, अरे कितना मजा आता है। क्यों? क्योंकि आई नो माई मदर्स प्रकृति, आई नो माई फादर्स प्रकृति, आई नो हाउ मच टू आर्ग्यू विद whom, I know how to deal with my relationships because of Ayurveda. आप समझिए बहुत इंटरेस्टिंग है, किससे कितना आर्ग्यू करना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत उनको मजा आता है आर्ग्यू करके, मंगल वाले हैं। क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं उनसे आर्ग्यू करके? कोई राहु वाले लोगों से तो मैं बात ही नहीं करता। सी, वी माइट से कि जजमेंट करा खराब है, जजमेंट ही तो है लाइफ। जजमेंट को कैरी मत करो आप। बुद्धि किस लिए मिला है? बुद्धि का मतलब ही तो अब जज करने के लिए मिला है ना। Now, there's a Rahu person who wants to be friends with me. I get to know. इससे ज्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाने वाला, ये तो भाग जाएगा कल। Yes or no? He'll be or she'll be very weird in their mental this thing, and they'll create a problem for me. And I've seen this happen. I was so prepared. I've seen I was testing, I tell you a secret now. Many of my friends, close friends, whom I really consider friends, they say, why are you mingling with such people? इनके साथ क्यों घूम रहे हो तुम? मैं कहा ये मेरा ऑब्जर्वेशंस है। दे आर माई गिनी पिग्स फॉर स्टडी। कई बार मैं ऐसे वृंदावन में ना ऐसे लोगों के साथ जाता हूँ जो बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, बड़े अजीब अजीब उटपटांग बिहेवियर होता है उनका। पानी वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों का फ्री में खा रहे हैं, अजीब अजीब नौटंकी कर रहे हैं भक्ति के नाम पे। एंड आई एम रोमिंग अराउंड विद देम।
सो मेरे बहुत क्लोज, उसने कहा कि यार तुम में तो एक स्टेबिलिटी है, यू आर अ स्टेबल ह्यूमन बीइंग, व्हाई आर यू विद दीस काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैरेक्टर्स? आई एम लाइक, दे आर माय स्टडी मटेरियल्स, because I get to see the Ayurvedic and the astrological imbalance in them, and I'm not connected. I don't care if they vanish from the world. I'm so emotionally detached, but I'm just observing them. That's why I'm with them. क्यों ऐसे बिहेव कर रही erratic? तो ये एक ऑब्जर्वेशन, आई एम नॉट, सी डोंट माइंड मी सेइंग दिस, आई रिस्पेक्ट देम, बट आई एम ऑब्जर्विंग देम दैट आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, नॉट फ्रेंड, अ पर्सन, पानी वेस्ट करने का बड़ा मजा था उसका। आई स्टिल रिमेंबर होली के समय हम वृंदावन गए, बातें कर रहा है, मैंने कहा बाल्टी पूरा कॉल ऑन, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी वेस्ट, आई एम लाइक डूड अरे होना ठीक है, एंड ही इज टॉकिंग, एंड द नेक्स्ट मोमेंट आई सॉ हिम आर्ग्यूइंग विद हिज मदर, झगड़ा कर रहे हैं मदर के साथ। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, पानी वेस्ट करने से आपका चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा आपकी माता, द मदर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मून। व्हाट, आई एम नॉट टेलिंग एनी बुकिश नॉलेज, आई हैव सीन दिस इन फ्रंट ऑफ मी। माय एग्जांपल, my relation with my mother is touch wood, there's a lot of wood in the house, perfect, ब्रिलियंट, वी आर स्टेइंग टुगेदर, बहुत मस्ती करते हैं, हा हा ही चलता है। पहली बात, मर्क्यूरी का दृष्टि पड़ता है उसमें, तो इट्स फन। सेकेंडली, आई हैव ऑलवेज बीन एन एनवायरमेंटलिस्ट बिफोर बीइंग अ स्पिरिचुअलिस्ट, still I am, I think anybody who is in this, they will consider nature as this thing. So I had won an award to conserve water, I had given some innovative strategies, always very conscious about water conservation, and I've seen this manifest as a beautiful relationship with my mother. It works, it is a universal law. So when we talk about remedies in the program, in the whatever it is not a random bookish knowledge. It is linked in a very detailed manner, and I'm telling you with this observation of mine. Some Rahu people, I was very sure that this person is an addict. I just observed. तो आई गिव यू द एग्जाम्पल, आई शुड नॉट, सुन के लग रहा है कि मैं किसी की बैक बाइटिंग कर रहा हूँ, बट मेरे लिए ऑब्जर्वेशन है। बड़ा हरीरा, सडनली दैट पर्सन वाज इनटू, अगेन इन वृंदावन आई मेट दिस पर्सन, आई कुड फिगर आउट उसके बर्थ चार्ट, मेरी न्यूमरोलॉजी देख के मैंने किया था, 4 नंबर था, देखो इस बंदे को कैसा होता है, हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गले में कंठी पहन के वो करे जा रहा है ऑल द टाइम, ये नियम दिखाना दूसरों को एंड ऑल दैट, आई वाज लाइक ओके। सडनली नाउ दिस पर्सन हैज बिकम नॉन वेजिटेरियन एंड ड्रिंक्स अल्कोहल, ऐसे ओ मैं तो माता की भक्ति करता हूँ, माता का टीका लगा के नाउ दे हैव बिकम माता रानी ऑल दैट। So that kind of fluctuating thing is a typical Vata imbalance and a Rahu imbalance. Now gravitating towards all the addictions and all. I'm very sure the person will become a drug addict very soon. They'll start smoking up. धर्मशाला में जाइए, हरे बाबा का प्रसाद है, and they keep smoking up and doing all these kind of things. And they think it's spiritual, but it's not. That's a Rahu imbalance. Now, once you know and see others, and then look at your life, that how much of what you are doing, you also party, you also go, you have a social life, you have a personal life, everything is there, inclusive. And then determine your dosha, your prakriti, and your Ayurveda and your yoga. You become far more inclusive, and your soul grows in a holistic manner. Then you become inclusive. I'm not saying that that person is wrong. There is no wrong and right in spirituality. It is all inclusive. कहीं पे ये नहीं लिखा कि नॉनवेज खाने से पाप होता है, ये नए नए ग्रंथों में लिखते हैं, कहीं नहीं लिखा। आयुर्वेद में तो नॉनवेज, देयर दे यूज स्नेक एज मेडिसिन, यू रीड इट, व्हाट डज इट से? इट टॉक्स अबाउट गुनास, दैट नॉनवेज हैज तमोगुण। व्हाट इज तमोगुण? दिस इज तमोगुण, inertia. Now it's your choice, you take it or not. That is spirituality. You do it, पाप लगेगा, पुण्य होगा, that is religion. तो यही डिफरेंस हो जाता है कि कल को मैं तो सात्विक बन गया, वेजिटेरियन हूं, नॉनवेज वालों को मैं गलत उसमें से देखूंगा, दैट विल क्रिएट नेगेटिव कर्मास फॉर यू, तो कहीं नहीं जाएंगे हम, वहीं रहेंगे, जज करेंगे दूसरों को। स्पिरिचुअली you'll know that this is तमोगुण, आई शुड नॉट कंज्यूम इट इन सच गुड डेज, तिथि के हिसाब से एकादशी, ये वो बेसिक्स, लेना है नहीं लेना है, कितना लेना है, क्या वो, एवरीथिंग you'll know what is it. अचार इज तामसिक, आम का अचार इज तामसिक, आम का मुरब्बा और आम का जो चटनी बनता है, आम पापड़, इज राजसिक, एंड सीधा जो आप आम खाएंगे वो सात्विक है। कितना कब क्या कंज्यूम करना है, यू शुड नो, दैट्स इट, देयर इज नो गुड बैड
It's all inclusive. So this is the knowledge that helps you to know it better. ठीक है? तो आ जाते हैं कफा दोष पे. मैं जरा क्लास वाले मोड में चला गया था, बिकॉज इट्स फन, दैट्स हाउ वी शुड अंडरस्टैंड थिंग्स. नो नो, बुकिश नॉलेज रट के नहीं, आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करिए चीजों को. एंड यही एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो स्वामी विवेकानंद बोलते थे, अनुभव ही ज्ञान है. यात्रा करना, लोगों को देखना, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना. जज मत करिए ये ऐसा है, ये खराब. नो, ये जैसा है वैसा है, ये इसलिए ऐसा है, मुझे क्या सीखने को मिला इससे. ठीक है जी. तो कफा वाले को मैं उदाहरण देता हूँ. मैं पुणे वाले मौसा जी की एग्जांपल दूंगा. मेरी एक दीदी है लखनऊ में, और आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग दोस पीपल बिकॉज दे आर माई बुक्स. ओके. सो चंद्र, हाँ, कफा वाले, लेट्स कम टू कफा. दे आर पीसफुल, मेडिटेटिव, काम, रिलैक्स्ड, generally when they're balanced. Very nice, relaxed, calm, है ना. बट इनमें दो तीन त्रुटियां जो होती हैं. Amongst all three doshas, kapha one are the most stable and balanced ones, no doubt. Earth है ना, stable है. But the biggest problem of kapha is what? Possessiveness, greed, and attachment. In a relationship between a kapha and a vata person, if they have a breakup, kapha suffers more, vata will move on. इसलिए चंद्रमा के साथ जब राहु लग जाता है, imbalances of emotions happen, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है. तो ये हो गया कफा का प्रॉब्लम. अटैचमेंट्स, इमोशनल अटैचमेंट, स्टैग्नेशन, स्टबर्ननेस, एंड प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, जिसको बोलते हैं मेलनकली, ग्लूमी, ब्रेन फॉग, कोल्डनेस, फिजिकल लेवल पे कफ, कोल्ड, कंजेशन, कफ, कफ, लंग्स का प्रॉब्लम, गले में खराश, कफ, पुअर मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू कोल्डनेस इन द बॉडी, कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो, एंड स्लगिशनेस इन द बॉडी, आलस्य. ये होता है कफ का प्रॉब्लम. ठीक है. स्लो होते हैं, धीरे धीरे करते हैं, सब कुछ आराम से करते हैं, बट कभी कभार बहुत स्लो हो जाते हैं. समझ आ रहा है? हमने देखा होगा किसी. यस. सो हैवी बॉडी होता है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थ्री प्लैनेट्स. चंद्रमा. चंद्रमा इज, हाँ, लेजीनेस इज प्रोकास्टिनेशन. लेजीनेस से भी प्रोकास्टिनेशन आता है. अब सुनिए बहुत ध्यान से. शारीरिक लेवल पे फिजिकल लेजीनेस इज कफा, मेंटल लेजीनेस इज वात. So we are all mixtures. You have to see, is it a physical laziness or mental laziness? That also has an effect. कई बार इंटरेस्ट की चीज आएगी तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाएगा. माई ब्रदर इज लाइक दैट. फुटबॉल के लिए फुल एनर्जी, फुल एनर्जी. ही स्टेज इन दुबई. इवन इफ ही कम्स टू शिमला, द फर्स्ट थिंग ही नीड्स इज फुटबॉल, फुल एनर्जी. छोटा सा काम बोलो, अरे यार नहीं. दैट इज द एटीट्यूड. सो दैट्स चंद्रमा. मून, balanced side of kapha, good metabolism, goal chehra. They have a whitish tinge on the face, rounded features. They have a very moon-like face, glowing skin, good metabolism, good health, good immunity. Biggest problem of moon is laziness. The moment they become lazy, kapha overtakes. कई महिलाओं को देखा होगा, पतले पतले होते हैं महिलाएं, बट जब वो मदर बन जाती है, माँ बनती है, 40 के अराउंड, 35-40 के, दे सडनली बिकम हैवी because the Chandrama gets activated. The motherly instincts is linked to moon. Kapha in the body increases. Okay. Kapha in the body increases. They become, their robust metabolism goes away. They become heavy, overweight, lazy. They become heavy, overweight, lazy. They have edema, water retention. And when there is some issue with other planets, emotion-linked psychological disorders. Emotion-linked psychological imbalances. दुख विलासिता, इमोशंस को लेके एकदम फंस गए, निकल नहीं पाते. कहाँ काम करना है, सेकेंडरी बात भी है इसका. कई बार अगर इमोशनल, अगर बैलेंस्ड हो, मून इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम एन इमोशन लाइक दैट. योर वात विल हेल्प यू. अदरवाइज द कफा विल टेक ओवर.
So we work on the Anahat Chakra and Agya Chakra. Chandra Namaskar, Ardha Chandrasana. There are areas of Vat. Hip is the Vat area, chest is the Kapha area. So when you do a half moon pose, you work on this and this both, Vat and Kapha, along with the systematic breathing. You can balance your emotions. Okay? They are nurturing, loving, अच्छा खाना बनाते हैं, वेरी गुड हाउसवाइफ्स, वेरी गुड पार्टनर्स, एंड दे लव टू कुछ लोग होते हैं जिनको सब आओ खाना खाओ साथ में पानी, दे ऑलवेज आस्क फॉर दिस वेरी होमली, घरेलू होते हैं, घरेलू होते हैं ना, कुछ लोग घर घर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बाहर अच्छा लगता है, सो घरेलू लोग होते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति वाले जो होते हैं, रोबस्ट बॉडी, देयर हैंड्स एंड हेड इज बिग, देयर हेड एंड हैंड इज बिग। कल हमने एक सज्जन से मुलाकात की, उनका चेहरा देख के मैंने कहा आपका जन्म क्या बृहस्पतिवार को हुआ था? ये भृगु संहिता में बोलते हैं उनका। वो शॉक्ड, आपको कैसे पता? मैं तुक्का लगा रहा था, वो स्टडिंग यू। अरे आप और बताओ, हाथ पड़ गया यार, ये सब मत करो मेरे साथ, आई एम जस्ट लुकिंग एट यू एंड टेलिंग यू यू हैव अ वेरी बृहस्पति एनर्जी। और क्या ऑब्जर्वेशंस की? बृहस्पति वाले बहुत देना चाहते हैं, उदार होते हैं, हमेशा दो, बिकॉज दे हैव एक्सेसिव। अरे तुम मेरे पास रहो, आई विल टेक केयर ऑफ यू, अरे क्या मैं, देर ऑलवेज पेइंग, देर ओवर एम्पैथेटिक, देर वेरी एम्पैथेटिक। ज्ञान, धर्म का ज्ञान उनको होता है, सही गलत समझ आता है कि ये गलत है ये सही है, बृहस्पति वाले समझते हैं। हमारे जो चंदन जी हैं, हमारे इन हाउस एस्ट्रोलॉजर, वो भी बृहस्पति वाले हैं। उनको आप बोलते हैं आप कंसल्टेशन 1 घंटे कराइए, 2 घंटे कर देते हैं, ज्यादा देना होता है उनको। दे ऑलवेज हैव अ लॉट टू गिव, एंड दैट्स व्हाई दे सफर। इसलिए सुपात्र में दान देना होता है, यस और नो? पात्रता नहीं है तो दान भी नहीं देना, ये मैंने बहुत बुरी तरह से सीखा है। आई विल शो यू टुमारो, माई चार्ट हैज अ बृहस्पति वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बृहस्पति, वो ठगे जाते हैं सीधे, मतलब बहुत दान देना होता है उनको, मन उदार होता है, कोई भी गरीब आए रे एंड गया। बृहस्पति, इनका प्रॉब्लम क्या है? कफा वाले होते हैं एंथुजियास्टिक, जोवियल, ऑरा इनका बहुत स्पिरिचुअल ऑरा होता है, दे हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस, हमेशा सही, धर्म, धर्म माने पूजा पाठ नहीं, धर्म माने सही गलत का ज्ञान होता है। ये फंसते कहाँ हैं? ये फंसते हैं ओवर इंडल्जेंस में, ज्यादा ज्यादा करना। हमारे देश में बृहस्पति का बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, आज ये पूजा, कल ये पाठ, आज ये पार्टी, आज ये फंक्शन, नॉट जस्ट फैमिली बट ऑल्सो रिलेटिव्स, सब आओ। तो सब आओगे तो समोसे कचौड़ियाँ भी चलेंगी, लड्डू भी चलेगा, गुजिया भी चलेगा, और करते करते आपको लिवर पैंक्रियास डैमेज हो जाएगा। सो एक्सेसिवनेस इज अ प्रॉब्लम ऑफ बृहस्पति, ज्यादा करना, ओवर डू, ऑलवेज ओवर एंगेज्ड। दे ऑल्सो गेट स्टक अप, नाउ प्लीज पे अटेंशन, स्टबर्न होते हैं, तो रिचुअल्स में फंस जाते हैं। हैव यू सीन सम पीपल रिचुअली करते रहते हैं, भीतर कुछ जाता नहीं है। हैव यू सीन मेनी पीपल हैव दैट, पूजा पाठ करना है बट अंदर नहीं गया, वो चीज, भाव अंदर नहीं आया, ये प्रॉब्लम होता है। कई बार राहु वालों के साथ मिलके ये गलत चीजें भी, जैसे अल्कोहल पीना, दारू, बिकॉज दे दे वांट अ गुड सोशल सर्कल एंड दे डोंट हैव अ सोशल सर्कल, रॉन्ग लोगों के साथ जब राहु के साथ मिलता है, ऐसा हो जाता है। They love people. They love to be with people. They love attention. They love, lot of human interactions. That is Brihaspati. Excessiveness, abundance. That's why liver is the, again, weakest organ. Liver, उसमें हम काम करते हैं। रेमेडीज की हम देखेंगे, अगर कल समय दो तो कुछ रेमेडीज ही बताऊंगा मैं, बड़ा आनंद आएगा। आई टॉक अबाउट दिस टुमारो, लेट्स सी इफ टाइम इज देयर, आई टेल यू। Kamanjit Singh, any book you can suggest for astro? There is no book on astro yoga yet. I have to write one. समय नहीं है अभी, कैलाश में जाके साधना करके जब होगा तब लिखूंगा। अभी तो हम बस ऐसे ही कर रहे हैं, आप लिखिए, है ना? लेट्स सी, लेट्स सी। सो बृहस्पति इज दिस, यू नो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ, हैव यू सीन सम स्टाउट पीपल लाइक दैट? बहुत मजा आता है, बड़ा शरीर होता है। हमारे जब हमने वृंदावन के गोस्वामी को देखा, बृहस्पति वाला एनर्जी है, शरीर का वो गड़न देख के लगता है बहुत कफाजनिक, बड़े बड़े पेट, है ना, देखा वो पुजारियों को, बट भीतर जाना चाहिए वो भाव। ठीक है, सो लॉ वगैरह, जस्टिस सीकिंग, इट्स ऑल अबाउट दैट। प्रसाद जी टॉकिंग अबाउट रीइंकार्नेशन, इट इज द एसेंस। आई विश आई हैड सम टाइम, कल देखते हैं, अगर रीइंकार्नेशन के बारे में हम कर्म की बात करेंगे, मजा आ जाएगा। उपनिषद का मैं बोल दूंगा, कठोपनिषद में, मंडूक्य उपनिषद में है सारा। I will explain writing it down. Yeah, that is Brihaspati. Clear? Let's come to Venus and quickly wind it up. Venus is also kaphagenic in nature.
वीनस कफा होता है. द मोस्ट गुड लुकिंग ऑफ ऑल इज वीनस. द मोस्ट good looking, balanced, good skin, good features. So all models, artists, they have Venus energy. Well developed body, well developed tissues. जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि वेट लॉस के लिए हमको जरा योगा करा दीजिए सर, इट इज वीनस एनर्जी. योग वेट लॉस के लिए करते हैं, सुंदर दिखने के लिए करते हैं, फेस योगा करते हैं. उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको आध्यात्मिक चेतना की, ये सब समझ ही नहीं. इमोशनल पीपल. सुंदर लगना है भैया, ग्रूमिंग लगना है, ये इंस्टाग्राम में कितने लाइक्स आए, दैट इज वीनस. बाहर मुखी होते हैं. अगर आपने योग सूत्र पढ़ा हो, there's a concept called प्रत्याहार. एनी योगा पर्सन हियर? द अष्टांग योग. यम नियम, पांच यम पांच नियम. यम नियम आसन. हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. सो प्रत्याहार माने अपने सेंसेस को भीतर अंतर्मुखी करना, जो वीनस का सबसे जरूरी चीज होता है, बिकॉज दे सफर फ्रॉम एक्सट्रोवर्जन. मुझे देखो, मैं ही हूं, मैं. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल ड्राइव. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चार्मिंग एटीट्यूड. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रोमांटिक इमोशनल लाइफ. गुड लुक्स तो होते ही हैं, उसको ही लेके रहते हैं. ठीक है, आप सुंदर देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. दिखना अच्छा है, ग्रूम रही है. पर उसमें अगर आप लिप्त हो गए, गया. हमेशा शोबाजी करते रहेंगे. और व्हेन देयर विल एन इमोशनल लॉस, you are disturbed. When you're disturbed, you overindulge. You drink, you sexually overindulge. Venus is sexual energy. You overindulge sexually and suffer. We have seen many, and they're emotionally the most vulnerable and susceptible one. Have you seen those top models? They look very attractive, but their personal life is very, very sad, very lonely from within. That is a Venus problem because they have not introverted and not channelized their emotion towards a different purpose. They look good, they have beautiful clothes, beautiful house, decorated, lovely, luxurious things, but often get stuck up into external charming than introversion. अब इनका एक इशू है, दे हैव स्ट्रॉन्ग. ये सुनिए, लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी है. ये मेरा रियलाइजेशन था. मैं इतना बार वृंदावन का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? बिकॉज इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन फॉर माई नॉलेज. आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज देयर. अदरवाइज आई एम अ हिमालयन पर्सन. हम पहाड़ों में जाके साधना करने वाले हमें. मैं तो किसी के सामने प्रेयर भी नहीं कर सकता. आई नीड सॉलिट्यूड. व्हाई? बिकॉज ऑफ सैटर्न. आई शो यू टुमारो. आई एम अ कंप्लीट सैटर्न पर्सन, कोल्ड. बट लॉर्ड ऑफ रसाज आर देयर. आई शो यू दैट टुमारो. यू विल ऑल्सो गेट टू नो योरसेल्फ. आई नेवर अंडरस्टूड कि क्या बिहारी जी को सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, अल्पना लगा रहे हैं, प्रसाद सजा रहे हैं. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? Then I understood that a person who has strong Venus energy gravitates towards art, they gravitate towards all these beautiful beautifications to generate that emotion. And Bhakti Yoga is the yoga of emotions, where you channelize your emotion towards devotion. And these are the madhyams through which you do it, provided you don't get stuck up into it. Very, very important. सुंदर लगना, सुंदर सुंदर चीजों के साथ रहना, ये एक माध्यम है अपने भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना, वीनस के थ्रू जाना. जो समझने वाली बात है, अभी बहुत ऊपर से बता रहा हूं इस चीज को. सो इफ यू आर अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग इमोशन देन इंटेलेक्ट, यू आर अ भक्ति योगी. एंड यू हैव टू चैनलाइज योर इमोशन टुवर्ड्स डिवोशन एंड फेथ. दैट इज योग ऑफ भक्ति, which happens in a place where decorations are needed. You cannot meditate in a cave. And this is what your path towards salvation is. Provided you go internalize. बाहर राधे राधे करना नहीं है, भीतर वो राधा का धारा भीतर जा रहा है कि नहीं, इसलिए राधे राधे. धारा जो है हमारा बाहिर मुखी है ना. यस और नो? देख रहा हूं, सुन रहा हूं, फील कर रहा हूं, प्रजनन, ऑल दैट एनर्जी इज ऑलवेज एक्सट्रोवर्टेड. वही धारा को जब आप रिवर्स करते हैं, इसलिए राधे राधे बोल के आप प्राप्त कर पाते हैं. तो राधा का धारा बनता है. वही धारा जो बाहर मुखी है, उसको भीतर अंतर्मुखी करने के लिए ये सारे माध्यम होते हैं. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर पाथ.
And bhakti is the culmination of all because we all are emotional beings. It comes, the bhav comes from within. And that is what the gods are craving for. But we end up only in the outer rituals, not going within. And the day we are practicing Raj Yoga, which we practice in Navagraha, I'll talk about Raj Yoga. When we practice this yoga, this bhav comes from within. And then you will see that your any path you are into, karma, gyan, bhakti, it gets far more profound and original, not nautanki. एकांत में आप उनको याद करते हैं, अपने सुख दुख में उनको आप हमेशा याद करते हैं, एनी रिलेशनशिप, संबंध दैट यू हैव क्रिएटेड विद, संबंध होता है ना, सखा भाव, दास भाव, सुना है ये सब, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रेम भाव, पुत्र बच्चों में देखते हैं भगवान को, माता को देखते हैं अलग अलग तरीके से, भाई के रूप में देखते हैं भ्राता की तरह से, सखा भाव। ये रिलेशनशिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू योर कफाजेनिक इमोशंस। दैट्स हाउ भक्ति योग इज डन। इट्स अ कंप्लीट साइंस। ठीक है जी। सो ये होते हैं कफा वाले। विद दिस आई विल जस्ट टेक अ 1 minute break and I'll continue. I will take all the questions tomorrow. I will just talk about a little bit of culmination, or maybe I just culminate. I'll just drink some water. I want to understand that. Are you understanding what I'm trying to say? Hmm? It's a very powerful way of looking at your life. कि भाई लॉजिकल रैशनल तरीके से जो दिखता है, नक्षत्र भी नहीं दिखते उसको रट के फायदा नहीं, राशि या लग्न के हमको सबको पंडित नहीं बनना, बट बेसिक ज्ञान हो जीवन के बारे में कि मेरा क्या पाथ है, मैं कर्मयोगी हूं या ज्ञान योगी हूं या भक्ति योगी हूं। To know your path, to know your emotions, to know your relations, you need to know a little bit of all of it in a amalgamation. So tomorrow, I'm sure you have many questions. Tomorrow I'll sit till 11. Don't you worry. I will start with chart analysis. Basic लग्न चार्ट आपका हम देखेंगे। आपको पता चलेगा आपकी प्रकृति, विकृति, एवरीथिंग विल बी विजिबल टू यू। ठीक है। कल हम इसके बारे में बोलेंगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं योगा क्लास, ऑफ कोर्स वी हैव योगा, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of August. It has, yes, we will talk about that program also, that if somebody wants to know it in detail and enrich their lives, I will talk about the program that we are starting. I have kept it in a way that is not very commercial and also not absolutely loose. So with a lot of mindfulness, we have started this in the international fraternity, and it was very commercial there. I'll be accepting it because the team that I was working with was very commercial, the person. Then I stopped it. I said, let me bring it back. So I made it less than half so that everybody can do it. I'll talk about that also. So still we are doing it on a very break-even level so that it's not very commercial, but not, because I'll tell you about one story of Brihaspati का श्राप। तो मैंने एक प्रोग्राम किया था योगा क्लास सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा अच्छा लगा कि सबको योगा कराएंगे, सबको हम अवेकन करेंगे। And I'm myself an international teacher. Okay, so we on a very financial level we earn in dollars. So I said no, जरा भाव लाते हैं, सबके लिए सेवा करते हैं। इंस्टाग्राम में दे दिया एंड 300 लोगों ने रजिस्टर कर लिया फ्री में। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फरवरी का महीना था एंड सुबह के ठंड में, ठंडे ठंडे पानी में, माइनस टेम्परेचर में आंख वांख धोके मैं बैठा और ऑनलाइन लॉगिन किया। 2 लोग थे ऑनलाइन। तो वो मुझे जो चपत लगी थी ना एकदम बृहस्पति का, मेरे टीम ने बोला हो गया, कर लिया। अपना ज्ञान को वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो आ तो जाएंगे, आप स्वयं वैल्यू नहीं करेंगे। फिर मैंने स्टडी की एस्ट्रोलॉजी एंड अंडरस्टूड दैट देयर हैज टू बी एनर्जी एक्सचेंज इन एवरीथिंग, अदरवाइज वो फलित नहीं होता। मेरे गुरु को भी मैंने वापस जब दिया तब जाके मेरा ज्ञान फलित हुआ। सो वी हैव केप्ट अ लिटिल, ऑफ कोर्स, अ नॉमिनल अमाउंट सो दैट देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज, यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट इट। ऑल दैट विल टॉक अबाउट टुमारो, है ना? So we'll discuss this, and I really hope that this idea, this concept, which is innovative, has gone across. I've got many good messages from all of you. Thank you so much. Tomorrow after the session, I will be opening this entire session to all of you. About the recordings, I will see that tomorrow we are going to share it with specific people or not. To ask it, only then we are going to give it, but it's not available forever because it's a concept, and only people who value it can take this and go ahead with their either research or profession or maybe personal enrichment of your lives.
So I really hope this works for all of you. And I'm so thankful for all the lovely faces I can see. I'm so happy to see so many lovely faces. आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक समय था कि जब मैं ये कैसे आया ये प्रोग्राम, मैं सराहन में था। सराहन इज अ पावरफुल प्लेस। शिमला से ऊपर जाके अभी कभी सुनिए पढ़िए इसके बारे में, भीमा काली मंदिर है वहाँ। इट्स वेरी क्लोज टू मी। उसके ऊपर एक जंगल है, उस जंगल में मैं बैठा था। और मेरा कीतू बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग डिटैचमेंट आ रहा था लाइफ में। मेरे पुराने फोटोज देखेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, ये सब। तो मेरे को समहाउ अंदर एक आवाज आई कि दिस इज नॉट द पर्पस राइट नाउ। डू समथिंग फॉर ह्यूमन काइंड। इफ यू हैव समथिंग, डू इट, and generate good amount of finances, because purusharth has to be like that: dharma artha kama moksha. I'm not going to have any family, I'm not going to have any marriage, and I'm clear about it, I know mine. I'm just, मेरा ऋण जो है अपने पेरेंट्स के प्रति वो करेंगे। then I want to buy tremendous amount of property and land. Why? Because I want to grow forest there. That is the old age plan. पूरा क्लियर रोड मैप हुआ कि अच्छे लोगों के हाथ में रिसोर्सेज होना चाहिए। So I came back, I created a complete company, a lot of people I enrolled with, sattvic temperament. We got into a proper thing and I said, इस उम्र में कुछ अच्छा और कंस्ट्रक्टिव और सात्विक किया जाए। It should be financial also, with complete understanding of dharma, धर्म को समझ के, और कुछ अच्छा जनरेट करके वी विल मेक समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ दिस प्लैनेट। एंड आई एम वेरी वेरी, इफ यू सी माई इंस्टाग्राम, आई एम अभी जयपुर में जो हो रहा है फॉरेस्ट के अगेंस्ट, आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग अबाउट, बिकॉज मैं खुद जामुन का, बेल का, सहजन का पेड़ जब तक आसपास ना हो ना, अंदर छटपट मर्क्यूरी एनर्जी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर वृद्ध अवस्था में, आई क्रॉस 50, आई एम एबल टू मेक अ इकोसिस्टम लाइक दैट। सो आई एम, आई हैव वेरी क्लियर विजन। स्टिल देन आई एम लिविंग अ वेरी मटेरियल लाइफ। गुरु जी मत बोलिएगा, मैं किसी गुरु नहीं हूं। आपके गुरु ने शायद मुझे एक अंश की तरफ भेजा होगा, अगर आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो तो। अदरवाइज आई एम जस्ट साउथ दिल्ली ब्रैट, यू नो डोंट ट्रीट मी लाइक दैट, यू विल हैव एक्सपेक्टेशंस कि गुरु जी एंड ऑल, है ना। तो सिंपल है, आप सब अपने अंदर आपका गुरु तत्व है, उसको जागृत करें, ज्ञान प्राप्त करें। लाइफ का पर्पस अगर आपको जानने में जरा इसमें सहायता मिले, एंड 99% पीपल हैव very good reviews about this program. 1% who could not are the ones who don't practice it regularly. ठीक है? I'll talk about this concept in even more detail tomorrow. I'd love to have you all, the lovely people. I feel so nice interacting with all of you. And I'll talk about how to see the chart, basics, and then I talk about the program. समय हुआ तो रेमेडीज के भी कुछ कुछ मैं बताऊंगा, वरना हम प्रोग्राम में रेमेडीज को दिल खोल के डिस्कस करते हैं कि एक एक चीज का लॉजिक क्या है, और मतलब रस में होता है, जैसे ऐसे ही फ्लो होता है। विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। ठीक है। सो नो, प्री वर्क जो है कमल जी, हम एक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम को, एक जिनको लग्न चार्ट निकाल के देखना है, एक छोटा सा वीडियो भेज देंगे, देख ले तो समय सेव होगा, है ना। वरना मैं ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, रख लेंगे तो आपकी सुविधा होगी। ठीक है। फिर हम आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी का एनालिसिस करेंगे। Noorji is asking, I'm Bengali or Himachali? Oh my God. How do I look? Do I look Bengali or do I look Himachali? So the Banerjee might be confusing you. So I'm a Himachali Bengali. No, I look Himachali because I don't know why I look Himachali. Because I'm a complete Bengali. Complete Bengali. Yes, I know Guru Pashupat. Yes, I do. Yes, yes, yes. Rimiji. So I'm a Bengali. My roots are the migrants from Bengal who came to Shimla during this, when it was the British capital. So Kolkata and Shimla were the two British capitals. My ancestors were into the British government and they came and settled here. So I've kind of that kind of a lineage, and they were the people who established the Shimla Kalibadi. So Shimla Kalibadi is the oldest Kalibadi outside Bengal. It's 200 years old. And that lineage is there. Gotra is my Shandilya Gotra. मैं अभी उस पर स्टडी कर रहा हूँ कि इट हैज टू बी लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई एम फ्रॉम दैट लीनिएज, ऑफ कोर्स एथनिकली बंगाली, बट समहाउ आई फील दैट कुछ कारण होगा कि हिमाचल में रहने का कुछ कुछ यहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, हिमाचल और बंगाल में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। काफी बंगाली योगीज, एक बंगाली तांत्रिक थे जिन्होंने इस शिमला के यहाँ पे श्यामला माता की पूजा करते थे, तो श्यामला माता के नाम से शिमला पड़ा। और हमारे जो यहाँ का जो काली मंदिर है, वहां पे श्यामला देवी की जो जो पिंड था, उनको स्थापित किया हमारे पूर्वजों ने। सो इट हैज अ बोथ
Now I've started looking like a Himachali. I don't know why. Maybe some kind of genetic changes, mutation with the 6 generations, but it's good. হ্যাঁ আমি স্পষ্ট বাংলা বলতে পারি, রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গাই। एंड यस थैंक यू सो मच। अब सभी से कल फिर से मुलाकात होगी, वार्तालाप होगी, और इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो सो मच। जय गुरु, Jai Ma, Namo Narayan, Shubha Sandhya, and greetings to all of you. I'm so happy. I don't know, I feel a very good energy looking to such beautiful faces. Tomorrow at 8:30, we'll continue with this. Thank you so much. Greetings to all of you. Namo Narayan, Har Har Mahadev. Jai Guru, Pranam. See you all tomorrow. Thank you. Bye-bye. Yes, I'll take all the questions. I'll talk to you tomorrow, late night. Okay? Thank you. Yes. Namaste.